everyone. I'm your host Ruchita. Welcome to today's session of NutriLift 360. Today, let's start with the best of our health and the best ways of fitness. Let us begin by understanding what to eat, how to eat, and when to eat. And to those of you thinking, हमें क्या इतना भी नहीं आता? Trust me, you're going to understand so much more about how the timing and quantity of food determines our health. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group and a flag bearer on this journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto this virtual stage and listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Friday session. I hope you had and done some exercise because there is nothing worse than having a late night dinner and going to sleep. It is so group, on the group chat, such progress by just making some minor lifestyle changes. And you know what? Most of those people have not even made 100% change. They've done just barely about 50%, and the results are already seen. So can you imagine, by just making small changes in lifestyle, what an amazing effect it will have on your holistic health? Don't take this part lightly, because this is something, which, there's a saying that for every action, there are consequences. Just because Zomato is available and Swiggy is available, it doesn't mean that, it is your right to just call them and eat anything at 2 o'clock in the morning or 3 o'clock in the morning, because that is not going to help your overall health. Recently, it is quite sad that I've been hearing and looking at various cases, that are coming up to me and seeing that how the health, gradually deteriorates. And people just fail to understand the difference between health span and lifespan. Technology has developed dramatically. Modern science and medicine has developed dramatically. Please use it wisely. Okay, do not abuse it. There's a big difference of using modern medicine and technology wisely, and there's a difference between abusing it. So when you come onto this community program, you get to understand as to what are the things, that will hurt your health and what will be good for your health. So stay connected, because ultimately there are two reasons why people generally let their health slip. One is lack of knowledge, and second is a strong decision to look after your health. I hope you take a strong decision that your health is your responsibility and nobody else's. Today, you're going to be listening from somebody who had a lot of health challenges. And once he got into the community and understood that what are the changes required, now he had a choice. He could either have taken, one medicine that and that will take the slight, uncomfortable approach of changing his lifestyle. And once he did that, boy, he is really feeling so good about himself. So listen to Manoj very carefully, because what he has to share will have an amazing impact on your holistic health, not only yours, but your entire friend. So over to you, Manoj. Thank you very much, Farooq. Am I audible? Yes, you are. You are. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And now about the screen. Okay. Okay. Thank you, Farooq. Thank you very much.
मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कुछ भी हूँ फ़ारूक की वजह से है, जहाँ तक हमारे हेल्थ का सवाल है। और शायद अगर मैं इस कम्युनिटी में और स्पेशली फ़ारूक के साथ नहीं जुड़ा होता, तो मैं कभी-कभी इमेजिन करता हूँ मैं कैसा हो सकता हूँ क्योंकि ना अभी मुझे पता है कि हम क्या करते हैं तो क्या होता है और क्या नहीं करते हैं तो क्या होता है। और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो एकदम सिंपल टॉपिक है, खाना। हम ये कहते हैं कि आपका हेल्थ 60-65% आपके खाने के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, कई लोग बोलेंगे कि नहीं, कई लोग बोलेंगे अरे पूरा होना चाहिए 100%। बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स होती हैं। और खाने के ऊपर ये बात है कि हमें नॉर्मली 4 चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। और उससे पहले तो आपको शायद ये पता ही होगा कि हम खाते क्यों हैं। अगर खाते क्यों हैं, ये पता होगा कि हम खाते हैं एनर्जी के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हर काम-काज को अच्छी तरीके से करने के लिए। और जब हमें पता है कि हम क्यों खाते हैं, तो क्या हम रियली उस एनर्जी को उस तरफ डालते हैं उस तरफ, या उस एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं, है ना? ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, ये आपको थोड़ा-सा पता चलेगा इसके बारे में। ओके? तो सबसे पहले हम आते हैं इस बात के ऊपर कि हमें खाना क्या है। तो बात ऐसा है कि हिंदुस्तान तो इतना फैला हुआ है और दुनिया उससे भी ज़्यादा फैली हुई है। हर जगह जाओ आपको एक नया चीज़ मिलता है, नया डिश मिलता है। अगर हम किसी को पूछते हैं आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, तो नॉर्मली किसी एक डिश का नाम लेंगे या फिर कोई वैरायटी का नाम लेंगे। बट हमारा जैसे अगर मुझे हमारे गांव की तरफ आप चले जाओ उत्तराखंड में कि आप क्या खाओगे, तो खाना खा लिया क्या, चावल खा लिया क्या, रोटी खा लिया क्या, ऐसे ही पूछते हैं। अगर आप किसी और जगह पे चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, तो उधर पूछेंगे रोटली खाधी क्या, है ना, रोटली खा ली क्या। बट क्या हमारा शरीर भी हमारे खाने को इसी तरह से देखता है? नहीं। हमारा शरीर देखता है कि हमारे शरीर को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिले हैं। ओके, तो हमें जो खाना है वो खाना है बैलेंस डाइट। ना बैलेंस डाइट क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें खाना है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो चीज़ें जो हमारे शरीर को सही तरीके से रखने के लिए और सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए रखे, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो होते हैं जिसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं क्वांटिटी में और वजन कर सकते हैं, है ना? वैसे तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का वजन कर सकते हो, बट डे टू डे एक्टिविटी में नहीं करते हो आप उसे। जैसे कि अगर आप प्रोटीन खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तेल खाते हो, फैट जिसको बोलते हैं, तो तेल का मतलब, जब भी मैं तेल बोलूँ या फैट बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि तेल, घी, बटर, डालडा, चीज़, जो भी चीज़ें हैं, मलाई, ये सब चीज़ आप फैट में गिन सकते हो, है ना? इसे हम वजन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि कार्बोहाइड्रेट आपको 100 ग्राम खाना चाहिए दिन भर में, तो आप 100 ग्राम वजन कर पाओगे। तेल आपको कहा जाएगा कि आपको 15 ग्राम या 25 ग्राम खाना चाहिए दिन भर में, तो आप उसको वजन कर सकोगे। प्रोटीन अगर आपको बोला जाए कि आपको 50 ग्राम या 175 ग्राम खाना है दिन भर में, तो आप उसे वजन कर सकते हो। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो लार्ज क्वांटिटी में आपने खाना है, जिसको आप वजन कर सकते हो, बेसिकली बोलने का मतलब ये है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसे आप वजन नहीं कर सकते, है ना? आपके लिए वैसे पॉसिबल है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे उसे, क्योंकि हम आम जिंदगी में नहीं करते हैं, है ना? 1 मिलीग्राम हम नहीं करते हैं वजन। ओके, 1 IU नहीं करते हैं वजन। ओके, तो ये दो टाइप के होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बड़े न्यूट्रिएंट है, इसको वजन कर सकते हैं, उसमें 3 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो चीज़ें जो आपको मेजरली आपके शरीर को कैलोरी देता है और जिसकी वजह से आपका बॉडी फंक्शन चलता है, आपको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, उससे आप काम करते हो। इसका जो बेसिकली जो सोर्सेस हैं वो है अनाज, दाल, है ना?
इन सब से शक्कर, मीठा, ये सब चीज़ें आपको प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है। फैट्स जैसे कि आपको पता ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, तेल है, घी है, डालडा है, चीज़ है, बटर है, मलाई है ना, ये सारी चीज़ें आपके फैट्स में आ गई। प्रोटीन 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 आपको वेजिटेरियन में दाल में मिल सकता है, अंडे में मिलता है, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में मिलता है, घी में मिल जाता है, सॉरी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल जाता है। ये आपके प्रोटीन सोर्स हो गए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलेंगे। ओके, और एक चीज और होती है जिसे बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ना फाइटोन्यूट्रिएंट बेसिकली को हम एसेंशियल में नहीं कंसीडर किया जाता कि जरूरी है खाना, वैसे नहीं कंसीडर किया जाता। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए सोचो आप कि क्या जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो उसको इस तरह से देखिए। फाइटोन्यूट्रिएंट बेसिकली क्या है? फाइटो मतलब होते हैं प्लांट, पेड़ पौधे, और न्यूट्रिएंट्स मतलब उसके अंदर के। अगर आपको मैं सिंपल आसान भाषा में समझाऊं फाइटोन्यूट्रिएंट्स काम क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश आती है हम रेनकोट लेके बाहर आते हैं, कोशिश करते हैं न भीगे। अगर ठंड आती है तो हम ऊनी कपड़े पहनना चालू करते हैं, स्वेटर, जैकेट वगैरह, ताकि हमें ठंड न लगे। गर्मी आती है तो हम छाता लेके चलते हैं ताकि हमें धूप न लगे, हमें गर्मी न लगे ज़्यादा, है ना। लेकिन क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जो खुले में पेड़ पौधे रहते हैं, इन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या? बारिश से बचने के लिए रेनकोट, ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या है उनके अंदर कि उनको सर्दी नहीं होती, हाँ, उनको ठंड नहीं लगती, उन्हें जुकाम नहीं होता? उसका कारण यह है कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर वही न्यूट्रिएंट्स अगर हम इंसान अगर खाने लगे तो क्या होगा? वही फायदा जो उनको हो रहा है। आप बीमार कम पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा या नहीं होगा, ये फायदा है उसका। हालांकि उसे नॉन एसेंशियल में डाला गया है। मेरा मानना यह है कि वो भी एसेंशियल है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े, कोई नहीं चाहता कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप समझ गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या उसके अंदर आते हैं। इन सभी को हमें खाना है, लेकिन बैलेंस में ना। बैलेंस मतलब क्या? दोनों का वजन बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी क्वांटिटी जो एक निर्धारित है उतना ही खाना चाहिए, न उससे ज्यादा न उससे कम। ओके, तो कितना कितना खाना चाहिए, ये एक जस्ट एक आइडिया है कि अगर एक प्लेट हमारे पास है दिन भर के लिए, तो उसके अंदर क्या चीज कितना होना चाहिए। तो इस प्लेट में जैसे कि इसमें दिखाया गया है 13% फ्रूट, 7% आपका पल्सेस या फिर नॉन वेजिटेरियन जो बेसिकली आपके प्रोटीन सोर्स है, 25% दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, घी छोड़ के, है ना, 2% नट्स एंड सीड्स, ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं, 2% फैट्स एंड ऑयल, मतलब जो भी वसा वाली चीज़ें हैं, 30% वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, ओके, और 20% आपके हो गए अनाज, सीरियल्स जिसे कहा जाता है। ओके, तो एक आइडियल प्लेट है, एक अंदाजा आपको दिया गया है कि कितना कितना आपके प्लेट में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ है। आपके इधर फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए जो आपको विटामिन और मिनरल्स देंगे। इसमें आपको प्रोटीन के सोर्स दे दिए जो कि आपको फीड, फिश, एग और मीट से या फिर पल्सेस से मिल जाएंगे। पल्सेस मतलब दाल से मिल जाएंगे। मिल्क और कर्ड से आपको अगेन कुछ मिनरल्स और फिर आपको प्रोटीन मिल जाएगा। नट से आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, कुछ हेल्दी ऑयल्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये सारा चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए खाने के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपना सुबह का मील जो सबसे पहला हम खाना खाते हैं, जिससे कि हम नाश्ता कहते हैं, उसमें हमें क्या क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी, आपके अंदर कार्ब्स होने चाहिए, बट कार्ब्स का कॉम्प्लेक्स कार्ब का फॉर्म होना चाहिए।
आपको उसमें प्रोटीन होना चाहिए, उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल होना चाहिए। ओके, कार्ब्स आपको कहाँ से मिलेगा? जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर आपको मिल जाता है सीरियल से, अनाज जिसे कहते हैं, लेकिन अनाज का एकदम रिफाइंड वर्जन नहीं, जैसे कि मैदा नहीं। ओके, प्रोटीन आपको मिल जाएगा आपको वेजिटेरियन में स्प्राउट से, मूंग और चना से, बीन्स और लेंटिन से, नट से, पीनट से, आलमंड वगैरह से। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे मल्टी विटामिन्स और विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट मील बना के देंगी। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं खा रहे हो जो गलत है आपके लिए, तो उसके जगह पे क्या लेना चाहिए वो अभी आपको बताएंगे। ओके, तो कुछ चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो उसको निकाल देना चाहिए, जैसे कि रिफाइंड कार्ब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, जैसे कि मैदा या मैदा से बनी हुई चीज़ें, वाइट ब्रेड, वाइट राइट, वाइट पास्ता, पेस्ट्रीज, केक, है ना, ये सारी चीज़ें बेकरी में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो, उसको आप निकाल सकते हो अपने उससे। और सैचुरेटेड फैट आप सिंपल टर्म्स में देखिए कि अगर रूम टेम्परेचर में वो जमा हुआ है तो उसे सैचुरेटेड फैट कहा जाता है, और रूम टेम्परेचर पे गला हुआ नहीं है तो सैचुरेटेड फैट नहीं है। ओके, तो ये आपको निकाल देना है। और इसे पे खाना क्या है, अभी आप देखिए, आप यहाँ पर एक कंपेरिजन चार्ट दिया हुआ है। एक है कैलोरी डेंस फूड। कैलोरी डेंस फूड मतलब ये कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है या फैट बहुत ज़्यादा है, और बाकी की चीज़ें कम है या नहीं है। प्रोटीन या तो नहीं है या तो कम है, और विटामिन मिनरल्स कम है या तो नहीं है। ओके, तो कैलोरी डेंस फूड में क्या होता है, उसके अंदर कैलोरी हाई होती है, और न्यूट्रिएंट डेंस फूड आप देखो, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। ओके, और न्यूट्रिएंट डेंस फूड के अंदर आप देखोगे कि कैलोरी कम होती है। आपको कैलोरी डेंस फूड इसलिए निकालना है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, और जबकि न्यूट्रिएंट डेंस फूड के अंदर आपको हाई लंबे तो खूब ही प्लॉट है ना, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लंबा कितना है उसका? कैलोरी डेंस फूड आपको बहुत जल्दी एनर्जी देंगे और बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड आपको काफ़ी लंबे समय तक आपको भूख भी नहीं लगने देगा और आपको एनर्जेटिक भी रखेगा। कैलोरी डेंस फूड के अंदर फैट, शुगर या इस दोनों से मिली हुई कोई चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, जबकि न्यूट्रिएंट डेंस फूड के अंदर आपको ज़्यादा करके होल प्रोसेस फूड मिलेगा, या सॉरी होल फूड मिले, होल ग्रेन्स का बना हुआ मिलेगा, कच्चा मिलेगा, और या फिर अनप्रोसेस्ड मिलेगा। कैलोरी डेंस फूड शरीर के लिए बहुत ख़राब है, जबकि न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज आपको भूख लगा है, तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, एक 2 कप पाइनएप्पल और 1 कप ब्लूबेरी, और दूसरा है एक सिंगल ब्रेड पकौड़ा। कैलोरी वाइज अगर आप देखोगे तो दोनों में सेम कैलोरी है, 300 कैलोरी, लेकिन अगर आप न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखोगे तो आपको फ्रूट वाला जो बाउल है या कप्स है, उसमें आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो आपको करना क्या नहीं है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अवॉइड कर सकते हो या निकाल सकते हो अपने लाइफ से। आप अपने लाइफ से रिफाइंड शुगर निकाल सकते हो, जंक फूड निकाल सकते हो, जैसे बर्गर, पास्ता वगैरह, है ना, बर्गर, पास्ता, या क्या बोलते हैं इसे, अपना पिज़्ज़ा वगैरह। आप सिगरेट पीना बंद कर सकते हो, पी रहे हैं तो आप शराब पीना बंद कर सकते हो, कर सको तो। स्पाइसी फूड लिमिट कर दो, कम कर दीजिए। ओके, कैफीन छोड़ सको तो छोड़ दो, प्रोसेस फूड को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कैलोरी डेंस फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए, और सोने से पहले स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए, है ना। सोने के, खाने के और सोने के बीच में अगर आप हो सके तो स्क्रीन टाइम को अवॉइड कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि आप हो सके तो डे लाइट में खाना खाइए। डे लाइट मतलब ये सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने के बीच में आपके डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया और लिमिट से ज़्यादा हो गया। कोई मुझे पूछता है कि मुझे कितना दिन भर में फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहिए, मैं कहता हूँ तकरीबन 1 से सवा किलो ना। कारण क्या है, कारण ये है
कि हमारे खाने के अंदर जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। मैं कहीं स्टडी पढ़ रहा था जिसमें मैंने ये पाया कि आज से 25-30 साल पहले एक पालक की गुट्टी में जितना, पालक की गठड़ी में जितना विटामिन सी मिलता है, उतना ही अगर आपको अभी चाहिए तो आपको 3 से 4 गट्ठी खानी पड़ेगी। हो सकता है आपके पास पैसे हों, आप खरीद सकते हो, लेकिन क्या आप उतना खा सकते हो? ओके, आप अपने खाने में प्रीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, है ना? आप अपने पानी ज़्यादा पिए, आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, खाना आप चबा के खाएं अच्छे तरह से निगलने से पहले। फाइबर को अपने खाने में बिल्कुल इंक्लूड करिएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे डिश देखता हूँ, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट के प्लेट्स देखता हूँ मैं, जहाँ पे जो एक मेनू लगा होता है बहुत जोरदार, बट उसके अंदर फाइबर की कमी इतनी कम हो जाती है कि क्या कहें। खास करके वहाँ पर जहाँ पर अनलिमिटेड थाली मिलती है, ओके, या फिर जो थाली का पैटर्न है, थाली के अंदर तो है ही नहीं आज की डेट में फाइबर। ओके, आप अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी करें और एक फर्मेंटेड फूड हमेशा खाएं, जैसे दही हो गया या इडली हो गया या ढोकला हो गया। ओके, एक्सरसाइज रोज करें, न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड खाएं, प्रोटीन डेंस फूड कंज्यूम करें। ओके, प्लांट बेस्ड फूड पे आप अगर अपने आप को कन्वर्ट कर सको तो बहुत बढ़िया। कई कंट्रीज़ हैं जो अभी आस्ते आस्ते प्लांट बेस्ड फूड को बहुत प्रमोट कर रही हैं और कई लोग हैं जो प्लांट बेस्ड के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, दो खाने के बीच में या फिर सॉरी सोने के और खाने के बीच में, रात का खाना जो डिनर है उसके बीच में कम से कम 2 घंटे का आप गैप रखें। और किसी अलग अलग तरीके हैं बहुत सारे आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के, आप उसमें से कोई तरीका सीख सकते हैं। अब बात आती है खाना कैसा चाहिए। ओके, खाना आपको खाना है बहुत सोच समझ कर। सोच समझ करने का मतलब ये है, स्टार्ट होता है चबाने से। जितना ज़्यादा आप चबाओगे उतना ज़्यादा टाइम आप लोगे निवाले को ख़त्म करने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा चबाइए। ओके, जितना ज़्यादा अच्छे से आप चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छा उसका डाइजेशन होगा। आप जैसे मुंह पे आपने डाला, आपका लार जो आता है आपके मुंह पे, वहीं से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपने अच्छी तरह से चबाया तो आपका डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप आस्ते आस्ते खाओगे, आप बहुत कम कैलोरी खाओगे, क्योंकि आपको लगेगा आपने बहुत खाना खा लिया। ओके, आप अपने पानी का क्वांटिटी बढ़ाइए। अगर आपने अच्छी तरह से चबाया, पानी का क्वांटिटी अच्छा रहा, तो डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है और जितने मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनका रिस्क कम हो जाएगा। और अगर आपने खाना कम खाया है, अच्छी तरह से आपकी बॉडी ने उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बहुत कम चांस है कि आपका वेट बढ़े। क्योंकि आपने जब खाना खा लिया अच्छे से, तो आपको बीच बीच में खाने के लिए भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप स्नैकिंग नहीं करोगे या फिर कुछ न कुछ बाइटिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं करोगे, क्योंकि नॉर्मली वो चीज़ें बहुत हेल्दी कैलोरी, हैवी कैलोरी वाली होती हैं और न्यूट्रिएंट्स उसमें बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि आपने अच्छी तरह से चबाया, अच्छी तरह से आपने खाना खाया है, आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ रहेगा। ओके, तो इस तरह से स्लो खाना खाना बहुत ज़रूरी है। और स्लो खाने खाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप कुछ काम कर सकते हो, जैसे खड़े रहकर खाना ना खाएं, अगर हो सके बैठ के खाना खाएं। अगर आपने कहीं से पार्सल मंगाया है तो सिर्फ डायरेक्ट बॉक्स में ही न कूदें, उसे प्लेट में लेके खाएं। ऐसा खाना लें, चूज करें जिससे आपने चबाने में टाइम लगे, ताकि आप काफ़ी देर तक खाएं। ओके, अगर आपने ऐसा खाना किया जो मतलब सिर्फ निगला जा सकता है, चबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी खाओगे और ज़्यादा खा जाओगे। जब भी आप खाना खा रहे हो सके तो कोई दूसरी एक्टिविटी ना करें, नहीं तो उसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खाना खा लिया। और एक सबसे अच्छा तरीका जिसे आप बिल्कुल आज से ही ट्राई कर सकते हो, अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया तो, या फिर कल सुबह से ट्राई कर सकते हो। अगर आप चम्मच से खाना खा रहे हैं, एक बार आपने एक निवाला मुंह में डाल दिया, चम्मच को नीचे छोड़ दीजिए जब तक कि वो आपका निवाला आप अपने गले से नीचे नहीं उतारते। आप देखोगे कि आप कितनी अच्छी तरह से चबा चबा के खाना खा रहे हो। ओके,
अब जो आखिरी बात आती है वो आती है हमें खाना कब खाना चाहिए। यहां पर लिखा है लिसन टू योर इनर क्लॉक। क्लॉक का मतलब सबको मालूम होगा, इनर का मतलब भी मालूम होगा, योर का मतलब भी मालूम होगा, लेकिन इन तीनों शब्दों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो उसका मतलब कई लोगों को नहीं पता होगा। इनर क्लॉक क्या होता है? बेसिकली हमारे शरीर के अंदर हर बॉडी पार्ट का अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम होता है, या फिर कोई बॉडी पार्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा एक्टिवेट होता है और किसी टाइम पे वो कम एक्टिवेटेड होता है। इसी को बोलते हैं बॉडी का इनर क्लॉक। उसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप 24 घंटे को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, सनराइज से सनसेट और सनसेट से सनराइज, हमारी बॉडी दोनों टाइम पे अलग अलग काम करती है, जो हमें खुद आपको हमें ही पता है। जब सनराइज से सनसेट तक हम क्या करते हैं? हम काम करते हैं, हम जागे हुए रहते हैं, जबकि सनसेट से सनराइज के बीच में हम सोए होते हैं। तो इस बीच में शरीर के अंदर क्या हो रहा होता है? शरीर सनराइज से सनसेट तक, सूरज उगने से सूरज डूबने के बीच में एक्टिव रहता है। बॉडी बहुत सारे इतना एक्टिव रहता है कि हम कोऑर्डिनेशन का जो हमारा बॉडी का काम होता है बहुत अच्छे से होता है, बहुत मैक्सिमम रहता है। हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। ओके, हम जो भी काम करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए बॉडी एकदम तैयार रहती है। लेकिन सूरज ढलने से लेकर सूरज उगने के बीच में रात में क्या होता है? हमारी बॉडी अपने आप में रिपेयर का काम करती है। ये आप लोगों ने कई बार सुना हो कि रात के टाइम पे बॉडी रिपेयर करती है और रीबिल्ड करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे सनसेट हो जाता है, हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाना चालू कर देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें वो टाइम पे नहीं खाना चाहिए, अब वो रिपेयर कर रहा है ना। इसको इस तरह से देखिए ना, जिस रोड पे अगर काम जब रिपेयर होने का काम होता है उस वक्त उसको दोनों साइड से बंद कर दिया जाता है कि ताकि उस वक्त वहां पर सिर्फ रिपेयर हो, कोई गाड़ी आए जाए नहीं। ओके, तो इनर क्लॉक क्या है? इनर क्लॉक बेसिकली ये है जो हमारे बॉडी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग पावर देता है। लेकिन बॉडी को पता कैसा चलता है कि अभी टाइम क्या हुआ है? वो बेसिकली तीन चीजें हैं, एक लाइट, डाइट और एक्सरसाइज। ब्लू लाइट देख के बॉडी को लग जाता है कि अभी उजाला आ गया है और उस तरह से वो काम करना चालू करता है। खाना खाते हैं तो उनको लगता है सुबह हो गई। एक्सरसाइज करते हैं मतलब उनको लगता है सुबह हो गई, अभी काम चालू हो गया। अब आप इमेजिन करिए रात के टाइम पे जब हमारा बॉडी क्लॉक सोने के मोड में है, रिपेयर के मोड में है, और हम खाना खाएंगे, क्या हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसीलिए हमें जो हमारे सर्काडियन रिदम बोलते हैं, एक शब्द है। सर्काडियन रिदम बेसिकली क्या है कि हमारे बॉडी को पता है क्या टाइम पे क्या करना है, और उसे इन तीन चीज़ों से पता चलता है, लाइट, डाइट और एक्सरसाइज से। क्योंकि हमारे ब्रेन में जाता है और वहाँ से अलग अलग जगह पे वो एक्टिवेट करता है अलग अलग पार्ट्स को, जो काम करने वाले पार्ट्स हैं। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो बॉडी क्लॉक है वो क्या रेगुलेट करता है? वो हमारी स्लीप क्वालिटी को रेगुलेट करता है, हमारे माइंड का अलर्टनेस और फोकस को कंट्रोल करता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेशन को ठीक ठाक रखता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, हार्ट रेट को मेंटेन करता है, हमारे भूख को रेगुलेट करता है। ओके, ये बॉडी क्लॉक है। अब आप इस साइकिल को देखोगे, सर्कल को देखोगे, तो इस सर्कल में राइट साइड में जो ब्लू है वो रात सुबह शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का है, और जो लेफ्ट साइड में येलो पार्ट है वो सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा रात के टाइम पे आपका बॉडी, रात होने से पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, मेलाटोनिन सिक्रेट करना चालू होता है जिसकी वजह से आपको नींद आएगी। रात के टाइम पे आप बहुत गहरी नींद में रहते हो। सुबह 2 से 4 के बीच में आपके बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम रहता है। 4 बजे के बाद से कॉर्टिसोल रिलीज होना चालू हो जाता है। अब आप डे में देखिए, डे के टाइम पे सुबह आपका शार्प राइज हो जाता है ब्लड प्रेशर, आपको भूख लगनी चालू होती है,
आपकी मेंटल एक्टिविटी चालू हो जाती है, आपके मसल्स के स्ट्रेंथ बहुत अच्छे हो रहते हैं, मसल के कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे रहते हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है। तो ये आप देखेंगे अगर आप इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम है तब आपको ज़्यादा खाना चाहिए, या फिर जब आपको नींद, जब आपको सोना चाहिए तब आपको उठ के खाना खाना चाहिए, या फिर रात को 2 बजे उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये आपके सुबह की एक्टिविटी। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने का समय सबसे अच्छा क्या है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, जिसको कि हम सनसेट से, सनराइज से सनसेट कहते हैं, सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने के बीच में। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपने अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना खाया तो क्या होगा? अगर आपने डे टाइम पे, है ना, जब सूरज उगा हुआ है तब आपने फैट, प्रोटीन और कार्ब अच्छे से खा लिया, स्पेशली सुबह सुबह, तो आपका बॉडी उसको अच्छी तरह से मेटाबोलाइज करके अच्छी तरह से यूज़ कर लेगी। लेकिन यही चीज़ अगर मिला के आपने फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रात के टाइम पे सोने से पहले बहुत हैवी खा लिया, हमारी बॉडी उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकती। अगर आप इसको देखोगे कि डे वर्सेस नाइट में कंपैरिजन करने पे क्या होता है, तो बेसिकली इसके अंदर 4 पैरामीटर दिए हुए हैं, मेटाबॉलिज्म, गट बैक्टीरिया, प्रोटीन और इंसुलिन। इन सब के ऊपर अपन आगे वाले स्लाइड में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, जैसे आप कार में आप ईंधन डालते हो, फ्यूल डालते हो, क्या होता है उससे? उससे गाड़ी को पावर मिलता है और गाड़ी चलती है। उसी तरह से हमारे शरीर को भी ईंधन की जरूरत होती है। वो कहाँ से मिलता है? जब हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं, वो जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का काम है। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपकी रात को देखिए, रात को हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो क्या आप रात को ज़्यादा खाना खाओगे? या सुबह जब आपको मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट है, तो सुबह आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इसलिए आपको सुबह ज़्यादा खाना चाहिए, रात में कम। ठीक है? और सोने से तो कम से कम 2 घंटे पहले, उसके बीच में नहीं आना चाहिए आपने। अब आ जाते हैं प्रोटीन। जैसा कि अभी बताया गया है कि रात को जब रिपेयर और मेंटेनेंस का काम होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप लेफ्ट साइड की टॉप पिक्चर देखेंगे तो रात के टाइम पे काम हो रहा है, तो आपके सारे जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स, वो सारे कंज्यूम हो गए, है ना। तो सुबह सुबह आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो जैसे ही आप डालोगे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो तुरंत पचा के आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा और बाकी जो काम प्रोटीन का वो भी करेगा। तो आपने अगर सुबह सुबह उसको रिफिल कर दिया, फिर आप अपना काम दिन भर का कर सकते हो अच्छी तरह से। उसी तरह से इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन हमारे बॉडी में जो भी हमने खाना खाया है उसको शुगर में कन्वर्ट करके हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचाता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अगर आपने देख लिया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक सिग्नल है और एक जगह सिग्नल नहीं है। सिग्नल नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा? पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपने इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं है तो क्या होगा? आपके शरीर के अंदर ब्लड में शुगर की मात्रा आपको ज़्यादा दिखेगी। लेकिन अगर इंसुलिन है, जैसे ही शुगर आ रहा है वो बराबर बराबर उसको अच्छी तरह से भेज देगा। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले पिक्चर में आप देख रहे हो, गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन जा रही हैं सिग्नल के हिसाब से, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। ब्लड में आपको नहीं दिखेगा शुगर, वो सारे सेल्स में पहुँच जाएगा, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। इंसुलिन सुबह सुबह ज़्यादा सिक्रीट करता है हमारा बॉडी, तो इसका मतलब हो गया सुबह सुबह हमने ज़्यादा खाना चाहिए, सुबह ज़्यादा खाना चाहिए। रात को इंसुलिन कम सिक्रीट करता है, तो रात को ना के बराबर खाना चाहिए। ओके, और जितना लेट खाओगे उतना खराब। अब तीसरा आता है माइक्रोबायोम। 2 टाइप के होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी में, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। डे टाइम पे अगर आप देखोगे सुबह के टाइम पे, तो अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम उसको खाना खाएंगे तो अच्छे तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी अंदर, तो इससे हमारे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, बैड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। लेकिन अगर वही आपने रात को खा लिया और पचा नहीं खाना और पेट में ऐसे ही रहा, तो उससे क्या होगा? बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे और बुरे बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। तो इसीलिए बैक्टीरिया का बैलेंस करने के लिए भी और हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए भी सुबह खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पेड़ की
पेट की जो फिजियोलॉजी है और बॉडी क्लॉक को किस तरह से देखते हो, किस तरह से देखिए आप इसको कि रात के टाइम पे जब आपको सोना होता है उस वक्त अगर आप काम करो या फिर खाना खाओ तो क्या हो, आपका शरीर दूसरे दिन भर से काम नहीं करेगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, आप सही तरह से नहीं रहोगे, फिर आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। ओके, और बिना ठीक के फिर होगा नहीं। तो इसी कहते हैं कि गट रिसेट वाला प्रोग्राम, कि अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है गट के अंदर उसको आप ठीक कर सकते हो, और नहीं भी किया तो एक बार साल में एक बार तो आप ऐसे भी करना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप राइट साइड में देखिए, आप सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, सही टाइम पे खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ और शरीर दोनों अच्छा रह रहा है। तो खाना खाने का टाइम सबसे अच्छा कब होना चाहिए? मॉर्निंग न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जितना सुबह आपने अच्छी तरह से खाना खा लिया, अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे दिए, आपका डे को कवर करते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दोपहर को रात को नहीं खाना है, दोपहर को भी खाना है, लेकिन रात को बहुत कम खाना है, 2 घंटे का गैप देना है, हो सके तो सूर्यास्त के आसपास खाना है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक अच्छा हो जाएगा, प्रोटीन बैलेंस जो आपका रात भर से कम है वो ठीक हो जाएगा, इंसुलिन सुबह सुबह आपको अच्छे से मिला है तो आपको जितना भी आप खा लोगे तुरंत सही तरीके से एनर्जी हर सेल्स में चली जाएगी, और आपके पेट में जो बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है वो ठीक होते जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रेगुलर ब्रेकफास्ट का इंटेक सही टाइम पे और सही न्यूट्रिएंट्स के साथ, बैलेंस डाइट के साथ अगर आपने कर लिया तो आपकी बॉडी का स्टेट हेल्दी रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आपने मिस कर दिया, या फिर आपने जब भी खाना खाया तब आपने इस तरह से बैलेंस में खाना नहीं खाया, तो ऑब्वियसली आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, और वो हेल्थ इश्यूज आस्ते आस्ते कितने आगे पहुंचेंगे आपको पता नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, 2014 में मेरे को ब्लड प्रेशर का इशू आया था, और 2014 में जब ब्लड प्रेशर का इशू आया था मुझे डॉक्टर ने 5-10 mg की गोली दी थी, और 1.5 साल के बाद 2016 में उन्होंने उसको 20 mg कर दी। मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। मैं डॉक्टर के पास बैठ गया, डॉक्टर को मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हो, जैसा बोल रहे हो मैं वैसा कर, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक तो नहीं हुआ, वो एक बार बात समझ में आती है, लेकिन ये बढ़ कैसे गया, ये सिचुएशन बेकार क्यों हो गई? उनके पास भी जवाब नहीं था मुझे देने के लिए, वो सिर्फ इतना बोल दिए कि मनोज डोंट वरी, मैं हूं ना। और मैं मन में सोच रहा हूँ आप हो तभी जाके सिचुएशन आई है। अगर उस वक्त मैंने इस इशू के ऊपर सोचा नहीं होता कि मैं अगर सब कुछ ठीक कर रहा हूँ एज डॉक्टर के बोले मुताबिक, तो ये बढ़ क्यों गया, तो मुझे कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। और जब मुझे कुछ सवालों के जवाब मिलने चालू हुए, फिर और पता लगाना चालू किया, तब मुझे पता चला ये आगे जाके कितनी बड़ी इशू हो सकती है। आज एक गोली, उसका पावर बढ़ा, फिर पावर बढ़ते बढ़ते फिर 2 गोली हो जाएगी, फिर 2 गोली से फिर तीसरी गोली होगी, फिर कोई दूसरी बीमारी आएगी जो इन गोलियों के साइड इफेक्ट की वजह से आएंगे, फिर चौथी बीमारी आएगी, और इसी तरह से हो सकता है मेरे पास कुछ साल बाद एक पोटली हो जाए दवाइयों की। मुझे यकीन है आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जो दवाई की पोटली लेके चलते हैं। उनको जब आप सवाल पूछो कि ये पोटली आपकी कब चालू हुई, वो बोलेंगे एक गोली से चालू हुई थी, और 90% टाइम तो उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सी बीमारी सबसे पहले आई थी। ये और भी बेकार सिचुएशन। इसीलिए अगर आपने शुरुआत में ही वो जो पहली गोली है उसी को अवॉइड कर दिया, वी कैन गारंटी यू आपकी लाइफ हेल्दी लाइफ रहेगी। आपने और क्या करना है, हर सुबह ऊपर वाले को धन्यवाद देना है, आपका न्यूट्रिशियस खाना खाना है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका बॉडी, सोल, माइंड, मनी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए, और उसे आपके कैसे पाना है। उस चीज़ के लिए आपको नई नई चीज़ें सीखनी होगी। ओके, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, और एक्सरसाइज जरूर करो।
आज के टॉपिक में इसके ऊपर हमने ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि आज हम सिर्फ खाने के ऊपर बात कर रहे थे। आप आते रहिए, आपको और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझने मिलेंगी, देखने मिलेंगी। थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रुचिता। थैंक यू सो मच मनोज। गाइस, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट इंडिकेट्स कि हमारी हेल्थ किन किन पैरामीटर्स से इम्पैक्ट होती है। With that, we come to an end of this session. अगर किसी के कोई questions हैं तो they may raise their hands. Put your hands. I see not. All right. Like Manoj said, हम एक ही बार में सारी information ना share कर सकते हैं और ना आप absorb कर सकते हैं. So let's make it a habit and see you in the next session with your friends and family and learn something new together. Until then, good night, stay safe.